Good morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss about prism and refraction through prism. How refraction occurs through a prism. Now we all know that what is prism. A prism is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle. Okay, prism is a portion of a transparent medium bounded by two plane faces inclined at a certain angle. Okay, two plane faces ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है जिसमें दो प्लेन फेसेस जो है एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं एक दूसरे से. नाउ टू प्लेन फेसेस ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी इंक्लाइंड टू ईच अदर आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म. सो ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी इनको रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म. द लाइन ए डी अलॉन्ग विथ द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस मीट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. जो ए डी लाइन है जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस मिलते हैं, इस एज को रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं. नाउ द फेस बी सी एफ ई अपोजिट टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म. बी सी एफ ई को बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, जो कि रिफ्रैक्टिंग एज के अपोजिट होता है. दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एंगल ऑफ प्रिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. द एंगल ए एट विच द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर inclined to each other is called the angle of prism. So we can say what is angle of prism? The angle at which the two refracting faces are inclined to each other. जहाँ दो refracting faces inclined करेंगे उस फेस को, उस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे. और जो मेन सेक्शन होगा प्रिज्म का, जो सेक्शन ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी जो है मेड बाई ए प्लेन एट राइट एंगल्स टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ABC is called the principal section of the prism. Now a prism has 5 faces, 9 edges and 6 vertices. 5 faces, 9 edges and 6 vertices. So this is about prism. Now we have to study how refraction takes place through a triangular prism. Now this is a triangular prism ABC and refraction takes place here. PE, PQ is the incident ray which incident on the interface AB, and here on this interface it enters from the air to the glass interface. Now FE is the refracted ray, and after refraction it comes out from this surface from the interface AC of the prism, and FS is the emergent ray. FS is the emergent ray. So PE is the incident ray. According to the diagram, PE is the incident ray and EF is the refracted ray and FS is the emergent ray. Angle A is the angle of prism and angle I is the angle of incidence, is the incident ray make with the normal ray, normal at the point of incidence. So this is the angle of incidence, angle I, and angle R is the angle of refraction with the refracted ray made with the normal ray, and angle E is the angle of emergence. angle E angle of emergence है जो कि emergent ray normal ray के साथ बनाएगी. M डैश normal है, normal ray है AC इंटरफेस पे, तो एंगल ई है एंगल ऑफ इमरजेंस. और एंगल डी है एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल डी इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे को जहाँ आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों रे जिस पॉइंट पे आकर मिलती हैं, जैसे यहाँ पे जी पॉइंट पे आकर मिल रही हैं, और यहाँ पर जो ये जी जो एंगल बनाएगा इस रे को हम जब आगे बढ़ाएंगे, जो एंगल बनेगा यहाँ पर एंगल डी, वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है. दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ व्हाट हैपन्स इन अगेन द सेम फिगर ABC, P and E is the incident ray, EF is the
refracted ray, and Fs is the emergent ray. Angle A, angle of prism. Angle I is the angle of incidence. Angle R is the angle of refraction. Angle E is the angle of emergence, and angle D is the angle of deviation. So according to this diagram. Now here PE is the incident ray and EF is the refracted ray and the Fs is the emergent ray. Now we know that here a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. AB पर जो रे एंटर कर रही है, PQ जो रे एंटर कर रही है, PQ रे जो AB इंटरफेस पे एंटर कर रही है सरफेस पे, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. ये एयर है बाहर और अंदर है ग्लास. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है. नाउ जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? नाउ द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्योंकि यहाँ रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट, तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी. बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो द रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. FE रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ एट द सेकेंड सरफेस AC सरफेस पे आप देख रहे हैं जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. ग्लास से, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है. सो at the second surface AC, the light ray has entered from the glass to the air, that is denser to the rarer medium, so it bends away from the normal. तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी रे. RS जो रे है ये बता रही है कि नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल 90 डिग्री से दूर चली गई है. ओके, सो इन दिस वे दिस डायग्राम शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ डेविएशन? क्या रिलेशन होता है एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन में? नाउ दिस स्लाइड शोज द रिलेशन. द एंगल डी बिटवीन, क्या होता है एंगल डेविएशन डी एंगल? द एंगल डी बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन जो कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. और एंगल ई सभी को पता है कि एंगल ई मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस AC इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो कि इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है AC इंटरफेस पे, AC फेस पे बना रही है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है. तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है? एंगल I, एंगल E, एंगल A और एंगल D में क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज शोन एज एंगल E प्लस एंगल E. यहाँ एंगल लगा सकते हैं आप, एंगल का निशान यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर एंगल लगाना है बच्चों आपको. दैट इज़ वी कैन से, यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल I प्लस एंगल E, दैट इज़ द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल A प्लस एंगल D. ठीक है, जो इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम बराबर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन के, ऑलवेज. ठीक है, तो ये इसमें फॉलो होता है. एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन. जितना एंगल ऑफ A और डेविएशन को जोड़कर आएगा उतना ही एंगल I और एंगल E को जोड़कर हमें मिलेगा. ओके, सो एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में अल्टीमेटली हमें ये रिलेशन मिलता है. नाउ सो यही हमने भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म it gets bent twice at the air glass interface and the glass air interface, and the emergent ray is deviated by an angle to the incident ray, and this angle is called angle of deviation. Angle of deviation जो deviation angle of incidence और angle of emergent में जो deviation आता है बीच में उनकी वैल्यू में, उसको angle of deviation कहते हैं. ठीक है, now the dispersion of white light by a glass prism. What happens when a beam of white light is passed through a glass prism? It splits up into a band of 7 colors, and this band is known as spectrum.
This dispersion of this bending of the light into seven, this splitting of the light into 7 color is known as dispersion of white light. ये कहलाती है dispersion of white light कहलाता है. और हमें क्या मिलता है? बैंड मिलता है 7 कलर का. Okay, band of 7 color is known as spectrum. Now the spectrum of white light has colors Vibgyor, violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड. जब वाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है और जिसका सीक्वेंस इस तरह से विबग्योर के रूप में हम इसको बोलते हैं. इसमें जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होती है. वॉयलेट लाइट बैंड मोस्ट while the red light band least, while the other colors बैंड इंटरमीडिएट. बाकियों का जो बैंडिंग है वो इंटरमीडिएट होती है, इनके बीच में होती है. सबसे कम हमें कहीं वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होती है, इसलिए नीचे वॉयलेट रहता है और ऊपर रेड रहता है और रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है. रेड लाइट की जो हम ये कहें कि स्पीड सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे कम बैंड होती है. सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड है, स्पीड ज़्यादा है तो इट मीन्स वो सबसे कम बैंड होगी. और वॉयलेट लाइट की स्पीड सबसे कम है तो उसकी बैंडिंग सबसे ज़्यादा होगी. तो इस तरह से हमें इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स और इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. So this process is called dispersion of light, in which white light is split up into 7 colors. Now the recombination of the spectrum of white light produces white light. अगर हम white light के स्पेक्ट्रम को हम दोबारा उसको हम करवाएं, दोबारा रिफ्रैक्शन करवाएं उसका, तो हमें white light मिलेगी. Now सबसे पहले इसाक न्यूटन was observed first to use a glass prism to obtain the spectrum of white light. He tried to split the colors of spectrum of white light by using another similar prism. He could not get any more colors, so he placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. Now, so he obtained that when he allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. Now what happens when a beam of white light is passed through a glass prism? It is split up into its component colors, and when these colors are allowed to fall on an inverted glass prism, it recombine to produce white light. जब एक प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करते तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और जब हम उसके पास में एक दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म रख देंगे तो हमें दोबारा से 7 कलर्स से हमें दोबारा वाइट लाइट मिल जाएगी. So in this way recombination of the white lights takes place by using an inverted prism nearby a prism. Okay, in this way we get a white light. Now similarly in nature there are various physical phenomena. Rainbow is one of them. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Now what is the cause of rainbow? Why it occurs? Now it is caused by the dispersion of sunlight by water droplets present in the atmosphere. The water droplets act like a small prism. They refract and disperse the sunlight and then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. So due to the dispersion of sunlight and internal reflection of the water droplets, we see the rainbow colors. हमें रेनबो क्यों दिखाई देता है? What is the science behind that? जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो और जब बारिश रुक जाती है और अचानक से सन आता है तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है. क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश के बाद में जो एटमॉस्फेयर एकदम साफ़ रहता है और उसमें बारिश की बूंदें रहती हैं जो कि ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती हैं. एकदम ट्रांसपेरेंट साफ़ होती हैं ये बारिश की बूंदें और ये प्रिज्म की तरह काम करती हैं. इन पे जब सनलाइट गिरती है, इन वाटर ड्रॉप्स पे जब सनलाइट गिरती है तो ये प्रिज्म की तरह काम कर रही, ट्रांसपेरेंट है, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है सनलाइट और रिफ्रैक्ट होके 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है. और ये
जब ये वाटर की सरफेस पे टकराती हैं तो ये अंदर, क्योंकि मीडियम एक ही है, वाटर मीडियम है, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद में वाटर ड्रॉप से, जब वाटर ड्रॉप से बाहर निकलती हैं, क्योंकि मीडियम अगेन चेंज हो रहा है, वाटर से आप एयर में लाइट आ रही है, तो ये मीडियम चेंज होने के कारण ये दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट दोबारा रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होके अगेन 7 रंग में ये स्प्लिट हो जाएगी और ऑब्जर्वर की आंखों में 7 रंग दिखाई देंगे, 7 रंग दिखाई देंगे, जो कि विबग्योर के फॉर्म में वाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट्स कलर हैं वो हम तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सभी फिज़िकल प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा वाइट लाइट रिफ्रैक्ट हुई और फिर डिस्पर्स हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब बाहर निकली दोबारा ये रिफ्रैक्ट हो गई और डिस्पर्स हो गई, और इस तरह से ये 7 रंग हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से रेनबो इस फॉर्मेशन होता है जिसमें वाटर ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह काम करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, go through all the topics and try to clear your concepts and try to understand them. Okay students, thank you.